No, I'm not going to start. Na, it is your call today. That is what we have decided. That you will come to the call and we will discuss your problem. It's not like what I am saying. It is what you will speak, and I will listen, and I'll, if possible, I'll give you a roadmap as to how to overcome. Right. So you have to settle down Yes, ma'am. somewhere. You have to settle down somewhere, and so you have to talk. You have to speak about yourself, right? So settle down somewhere, and then, like say, stick to the time, na, Sunny. That is the first prerogative of a leader, Yes, ma'am. and that will be one of the reason, for your friends to no tell something about you to the boss, right? Don't call them enemies. They are where if somebody tells that you are not in time, you are not very punctual, then they are actually doing you a favor, right? So only then you can correct yourself. And being late is something which is intolerable in the leadership parlance. So that is what I'll be telling you, and you have to just switch on your video also so that I can see while you speak, right? And it will be a discussion, like you have to, like say, I have to see that you are focusing on here in this discussion, so that no, I'll be actually, what I'll be doing is I'll be reading all your personality, right? And I can suggest you where all you need to correct. So how much time will you take to reach to your room and settle down somewhere? I take 4 minutes to reach my room. After Okay. I joined 7:44. Okay. So, okay, I'll be waiting. Let the music play, right? So I'll be waiting for you here only. Okay, ma'am. Okay. Company I work with Scott Glass India Private Limited, which is German-based company. Hmm. After that, I work in a greenfield project, total new project, Hmm. and then work with as a contractor in Zydex Industry Private Limited Hmm. near Vadodara at Padra. Okay. Okay. So, what kind of job is this? This is the third job, right? Yes, ma'am. It is my third job. After that, I work in a FAM Construction India Private Limited. Its head office is in Mumbai. आप हिंदी में बात करो, इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, हिंदी में Yes, बात कर सकते हैं, नो इश्यू, राइट? आपकी बात मुझे पता समझ आनी चाहिए, राइट? आप मेरी बात भी समझो, आपकी बात भी मुझे समझ आनी चाहिए, एंड डोंट फील लाइक नर्वस और कंस्ट्रेंट विथ लैंग्वेज, ऐसे ऐसे नहीं होता, राइट? सो वट एवर यू वांट टू स्पीक, जस्ट स्पीक। वीडियो ऑन करके रखिए। okay, ma'am. सो दिस इज योर थर्ड जॉब और फोर्थ जॉब? Uh, ये मेरी तीसरी कंपनी में जॉब है, पर मैंने पहली कंपनी में 3 लोकेशन पे 3 कंपनी से डील करते हुए काम किया था। दूसरी में भी 3 अलग-अलग कंपनी में काम किया था, और अभी एक कंपनी यानी क्लाइंट की ही कंपनी है अभी। पहले क्लाइंट हमको कॉन्ट्रैक्ट देता था, ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा था। अभी क्लाइंट की ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो ये किस तरह का काम है आपका, कंस्ट्रक्शन? हाँ, मेरा सिविल इंजीनियरिंग हुआ है, तो मेरा ये कंस्ट्रक्शन का ही काम है। हम्म। कंस्ट्रक्शन तो आप वो जो लाइसेंस वगैरह कुछ लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो आपने लिया है, या फिर आप इंजीनियर हैं तो वो सब नहीं लगता? I am civil engineer. I do not require any license. I do job. अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, सिविल इंजीनियर हैं आप बाय प्रोफेशन। सो ऑल इस सारे में आप डिजाइन करते हो, कर रहे थे, या फिर No, व्हाट? ma'am. I
work in execution team. हाँ, एग्जीक्यूशन में क्या होता है? The structure and architecture provide us drawing, and with seeing this drawing we implement on ground, अच्छा, work with कंस्ट्रक्शन ही labor. डायरेक्ट। हाँ, तो आपके आपके जो काम में जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या क्या है वो बताइए। सबसे पहले तो है आपका लेबर अरेंजमेंट करना। Yes, labor arrangement. हाँ, uh, After that, machinery requirement, permission taken from plant and operation team. प्लांट एंड ऑपरेशन टीम। अच्छा, आपका प्लांट वाला ऑपरेशन है, राइट? Yes, yes. ये कौन सा प्लांट है आपका? uh, Actually I forgot to tell you that I work in Reliance Industry at Jamnagar. रिलायंस इंडस्ट्रीज एट जामनगर। ओके, ओके, ओके। हाँ, बोलिए बोलिए। सो यानी इसके पहले सारी जॉब वो हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। अभी ये हमारी यानी मैं क्लाइंट हूँ, उस तरह से अभी बिहेव या वो जो भी करना है वो अभी थोड़ा एडजस्ट करना। हाँ, आप म्यूट पे चले गए। म्यूट पे चले, हाँ। ओके, ठीक है, ठीक है। ये हर एक कंपनी में होता है, उनका अपना जो होता है ना कि बंदा जब नया ज्वाइन करता है तो उसको इंडक्शन कैसे करवाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। जैसे आप कॉलेज में हो तो रैगिंग तो होगा ही, आप किसको कंप्लेन करने जाओगे? ये आपका सीनियर कर रहा था, सीनियर का सीनियर कर रहा था, तो सही है। कंप्लेन कंप्लेन तो नहीं हो सकता ना। सो इट इज लाइक दैट। और हम भी, मैं भी अभी जब आपको पढ़ाती हूँ तब मैं भी पढ़ती हूँ, राइट? सो मैं जब पढ़ती हूँ तो वहां पे एक बड़ा सा ग्रुप है, मैं वहां पे भी जो नया आता है उसको रैगिंग करती हूँ। सो आई एम नोन फॉर दैट। तो रैगिंग में ये होता है कि हाँ बाबा, गुरुजी के पास जाओ जाओ जाओ, ऐसे करके। फिर हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हो गया, कैसे, मतलब इस तरह का चलता है। ऑनलाइन में आप और क्या रैगिंग कर सकते हैं, राइट? सो यस मैम। ये अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने कंपनी के कल्चर होते हैं जो होते श्योर। हैं। इसमें ना कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। दूसरी बात आपको ये बताऊं, जितना आपने बताया मैं उसी पे थोड़ा सा मुझे याद पड़ा, और दिन भर बात कर रहे थे तो मैं सोची कि आपको बता दूं। आप थोड़ा सेटल हो जाओ ना, इधर उधर मत देखो। कोई है क्या वहां? नहीं है मैम। अगर कोई है तो उनको भी बिठा दीजिए, लाइक नो इशू ना। यहाँ पे तो बात ही कर रहे हैं, उनको बोलिए ओके, बैठ जाए वहां पे। ओके मैम। एंड देन आई कैन सी टू फेसेस इंस्टेड ऑफ वन, वो चलेगा। उनको भी आप लिंक दे दीजिए, वो भी वहां बैठ जाए, राइट? ताकि आप दोनों ही बात कर पाओ, मतलब साथ में ले लो। हो गया? तो यस। तो इंडक्शन एक होता है कि जब आप वेलकम करते हो किसी बंदे को अपने कंपनी में, उसको बोलते हैं इंडक्शन, राइट? तो यस मैम। हाँ, तो वो इंडक्शन का तरीका सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस है वो 34 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, प्लस आई आई हैव वर्कड इन मेनी कंपनीज, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इतने यस। सारे ऑर्गेनाइजेशन में सबके तरीके अलग थे इंडक्शन के। मुझे कैसे मतलब कंपनी में लिया वो डिफरेंट थे। तो सबसे आइडियल जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि कंपनी के बारे में जानकारी देना, और यस। जितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे मिलवाना, और सबने क्या क्या किया है और क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो जानना जनाना। मतलब वो खुद बताते हैं, आपको भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी करो। लेकिन ये जैसे आपकी कंपनी बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की रैगिंग होती है। सो इट इज नॉट अबाउट यानी जो जो बंदा आपके साथ वो प्रैंक खेला, वो उस बंदे के साथ भी वैसे ही प्रैंक हुए रहेंगे, राइट?
क्या दिक्कत है अभी? I take not paid and pen, so I wrote some point. अच्छा, हाँ, पेन एंड पेपर लेके बैठ रहे हैं। अच्छा, यस। सो देयर इज नो दोस्त और दुश्मन, पहला पॉइंट है। Okay. एंड द सेकंड पॉइंट इज इंडक्शन के तरीके विल बी डिफरेंट। यहाँ छोड़ के आप अगर कहीं और जाओ, देन यू विल सी कि लोग डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे हैं। एंड सपोज आप ये देश छोड़ के दूसरे देश में जाओ, देन ऑल्सो द वर्क कल्चर विल बी वेरी डिफरेंट। तो आपको पहले एक ओरिएंटेशन देते हैं। सो पहले तो इस माइंडसेट से थोड़ा ब्रॉड कीजिए माइंडसेट, so that you will know कि ये this is to be expected, this is not about दुश्मन। then the third thing that which you have told me is about the boss। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बंदा था, वो अपने बॉस के चाल ढाल से बड़ा परेशान था। और ऐसा हुआ कि काफी दिन तक वो झेला बॉस को। और एक दिन क्या हुआ, नौकरी दूसरा ढूंढ के वो चला गया दूसरे कंपनी में। अब चूंकि बहुत ही बुरे, उसके दिमाग में बहुत गुस्सा भरा हुआ था, तो वो कभी कांटेक्ट बैक करने की कोशिश नहीं की। और 10 साल बाद वो दोनों कहीं एक मिले, ठीक है। कोई, वो कहीं जा रहे थे, ये भी कहीं जा रहे थे, मतलब दिख गए एक दूसरे को। तो फिर वो, इतने दिनों की पहचान है, इतने दिनों के बाद मिले, तो बोले दुश्मनी तो नहीं दिमाग में होगा ना। वो चाय पे चले गए, चाय पे बैठी, तो बात ऐसे होती रही कि क्या चल रहा है, कैसा है, कहाँ है आजकल, ये सब। जो जो बॉस थे, वो बोल रहे हैं कि तुम तो छोड़ के चले गए, उसके बाद बहुत सारे आए, और ऐसे ऐसे चल रहा है अभी सबका ये स्ट्रक्चर, ये सब। Yes, ma'am. आपके आपके चक्कर में मैं छोड़ के चला गया था 10 साल पहले। वो अभी बोल सकता है ना, तो पहले तो बॉस को बोल नहीं सकते थे। तो बॉस पूरा मतलब सरप्राइज्ड हो गया, राइट। पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आप छोड़ के क्यों गए? अभी जैसे आपको गुस्सा है बॉस के, बॉस मिलके अपने एनिमी के साथ, आपने बताया ना, एनिमी। Yes, ma'am. तो उसने भी बोला कि ऐसा था। तो वो बोला, अच्छा वो तो मैं ये सोच के तो नहीं बोला था आपको। आप अगर एक बार मुझे बोलते कि तुम्हारी ये बात से मुझे परेशानी हो रही है, तो फिर मैं उस तरह की बात तो नहीं करता ना आपसे, उस तरह का Yes, ma'am. मजाक नहीं करता। आपने बताया नहीं। आप अच्छे मेरे वर्कर थे, और आप चले गए छोड़ के, तो मुझे का भारी, मतलब बड़ी मुश्किल हुई आपको रिप्लेस करने के लिए। तो कोई तो वैसे मतलब मतलब इरिप्लेसेबल नहीं होता, कोई जाता है तो कोई आ ही जाता है। लेकिन आपकी तरह एक बंदे को ढूंढने में मुझे काफी परेशानी हुई थी। आप मुझे सिर्फ बता देते कि आपकी इस तरह की बातें मुझे नहीं पसंद, तो फिर मैं सुधार लेता ना खुद को। अब देखिए ये बात कब पता चली उसको, दस Ten साल after बाद। 10 years. Yes. और जब वो घुसा उस कंपनी में गया होगा, तो तब बहुत सारे ड्रीम्स उसके भी होंगे ना, अच्छी कंपनी है, मैं यहाँ ग्रो करूंगा। ये बॉस के चक्कर में वो छोड़ के चला गया था। तो अच्छी Yes, ma'am. कंपनी फिर से ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है, सबको पता है, राइट। Yes. तो कहने का मतलब है कि आप गुस्से में आग बबूले हो रहे हैं, क्या दूसरा भी आप पे गुस्सा है? अगर नहीं, आप गुस्से में हो, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। आपका हो रहा है। आपके यहाँ Yes. नहीं जा रहा है। आप गुस्से में सिर्फ वही बात सोच रहे हो, वो दूसरा बंदा Yes. दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें सोच रहा है, राइट। Yes, सो ma'am. यस, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लीडरशिप इज, कि दूसरे को बात को समझना, ठीक है। अब आगे बताइए, आप मेरे ग्रुप में क्यों आए, मतलब कैसे आए? आई ऐसे तो
मेरा प्रोफेशनल लाइफ तो है, उसके साथ साथ ये लीडरशिप क्वालिटी या आपका जो ट्रेनिंग चलता है उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पे देखा था मैडम। कहाँ पे देखे थे? मतलब सोशल मीडिया मतलब फेसबुक या लिंक्डइन, कहाँ पे देखे? एक्चुअली अभी पता नहीं है, शायद फेसबुक पे ही देखा होगा मैडम। अच्छा, क्या देखे थे? वो तो लीडरशिप इन माय सर्कल का तो ग्रुप का नाम है। अच्छा अच्छा, वहां पे व्हाट्सएप लिंक था, तो आप व्हाट्सएप लिंक में आ गए। यस मैम। ओके। सो अभी आप बताएं कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, लीडरशिप में क्या सीखना था, स्पेशली क्या सीखना यानी लीडरशिप में यानी मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़े, मैं है? चीजों को अच्छे से समझ पाऊँ। एक मिनट रुकिए। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। हाँ प्रोडक्टिव, हाँ, और दूसरा क्या बोले आप? टीम के साथ अच्छे से रेपो बना के, रिलेशन बना के काम कर सकूं। अच्छा ओके। और बाकी तो अपना डेवलपमेंट हो फाइनेंशियली और सोशली, क्योंकि वो कंपनी में काम करते तो है समय पर, उसके साथ साथ फैमिली, और जब सोसाइटी में हम काम करते हैं तब हमारा भी कुछ डेवलपमेंट हो विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऐसा। डेवलपमेंट मतलब इसका मतलब क्या, डेवलपमेंट विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या, समझाइए थोड़ा। यानी ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि आ, ये सोशल एक्टिविटी में या किसी की मदद कर रहा है तो इसको पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन बनना है। हम्म। पर मेरा ऐसा इच्छा नहीं है। हम्म। फैमिली, सोसाइटी और अच्छा नाम नाम और शोहरत बने ना, ऐसा कुल मिला के। सेम। यस। अच्छा, आप बताएं, आप अपने हिसाब से बताएं। दूसरे में हम लिखते हैं आपकी अच्छी क्वालिटीज, योर गुड क्वालिटीज। इसमें आप हिचकना नहीं, जो भी आपको लगता है और लोग समझते हैं कि आपको लगता है कि वो गुड क्वालिटीज क्या हैं, वो बताइए। गुड क्वालिटी में ऐसा है कि मैं केयर करता हूँ, केयरिंग, यस, और परफेक्शन से काम करता हूँ, परफेक्शनिस्ट। हाँ। प्रिपरेशन पे फोकस ज्यादा रखता हूँ। डिटेल ओरिएंटेड, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। हाँ, और तो अभी प्रोडक्टिविटी बोले थे। हाँ, प्रोडक्टिविटी भी है मैडम। प्रोडक्टिविटी में क्या क्या समझते हैं इसमें? प्रोडक्टिविटी में मेरी कंसिस्टेंसी ज्यादा रहती है दूसरों से। कंसिस्टेंसी आपकी रहती है। हाँ, कंसिस्टेंसी एज कंपेयर टू अदर कलीग्स और अदर कॉम्पिटिटर, मैं सर्वाइव ज्यादा समय तक करता हूँ। यानी मेरे यहाँ पे देखिए, कंसिस्टेंसी ना किसी के कंपैरिजन में नहीं होता। वो आपकी कंसिस्टेंसी आपकी है। हाँ हाँ सही नेवर बात। थिंक अबाउट somebody else। यस मैम। आपको कैसे पता कि उसका स्केल क्या होगा?
ठीक है। तो सही बात है। ये कंपैरिजन बता, ये अगर दिमाग से निकाल देंगे, देन यू विल बी फोकसिंग ऑन योरसेल्फ ओनली। ओके ओके अगर आप 40% कंसिस्टेंसी पे थे, आज आप 42% कंसिस्टेंसी पे होने के लिए कोशिश करोगे, राइट? ओके ओके। और बताइए। आइडिया आइडिया ज्यादा आते हैं। हम्म। आइडिया और क्रिएटिविटी ज्यादा दिमाग में आती है। क्रिएटिविटी में क्या है? ये कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मल्टी डायमेंशन व्यू से देखना और उसको कैसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो। ओके। और बस ऐसा इतना ही अभी तो। हाँ, देखिए, मैं आपको जानबूझ के पूछ रही हूँ, क्योंकि रियली में क्या होता है, बंदे के पास एकदम से, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी 17 चीज होता है, 17, ओ, 17। देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं, मैं तो कुछ मना नहीं कर रही हूँ ना, आप जो बोल रहे हैं मैं लिख रही हूँ। आपने कितना बताया अभी? 1 2 3 4 5 6 बताया, 17 निकालिए अभी। स्किल में बताइए क्या है? राइटिंग स्किल अच्छी है। राइटिंग स्किल। और दिन का शेड्यूल एक्सरसाइज करना और हेल्थ के ऊपर फोकस रहता है। गुड। और अकेला भी सरवाइव कर सकता हूँ मैं विदाउट फैमिली। विद हाँ। और जैसे आपके प्रोग्राम से मैं जुड़ा ऐसे लर्निंग एटीट्यूड है। हम्म। फ्री में लर्निंग रीडिंग। एटीट्यूड है, या फिर कहीं पे अगर लर्निंग के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ा तो खर्च करेंगे? जैसे मेरे ट्रेनिंग में अगर आएंगे तो खर्च करके आएंगे ना। यस मैम। हाँ, तो वो उसके लिए है कि नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। पहले नहीं था मैडम, पर अभी धीरे धीरे माइंडसेट बना रहा हूँ। हाँ। क्योंकि पहले इतना अर्निंग रिसोर्स नहीं था हम्म। और बाकी जो बायोग्राफी और वो सब पढ़ा है तो उसके बाद में वो भी देखा कि इतने परसेंटेज हम अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में डालेंगे तो उसका आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है। ट्रस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोसेस। हाँ। और अगर अभी आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो मैं इसको रखती हूँ, ठीक है। आपको एक चीज बोलती, आपको कुछ मैं टेस्ट दूंगी, ठीक है। बाद में आप कीजिएगा, अभी तो बहुत टाइम लगता है उसमें। आपको यस। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। स्क्रीन में जितने www.high5test.com है, यस। उसको आप नोट कर लीजिए। ओके मैम। www.high5test.com। हो गया मैडम। ये तीनों हो गया। यस मैम। एक स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, एक पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, और एक पैशन टेस्ट। पेशन बेस। यस मैम। ये तीनों आप करना। ओके श्योर मैम। ये आपको मिनिमम 2 घंटे लगेंगे। ओहो। ठीक है ठीक है मैम। तो आप इसको शांति से, जब आपके पास 2 घंटे हो तभी कीजिएगा, ठीक है। तो ओके मैम। उसमें होता क्या है आपको मैं बताऊं, उसमें पहले जो आप हाई फाइव टेस्ट जो करोगे, उसमें इस तरह के आपको 5 क्वालिटी आपको मिलेंगे उसमें, आपके यस। बारे में, ठीक है। आप यस। अपना टेस्ट करोगे।
तो उसमें जो रिजल्ट आएगा आप मुझे वो भेजना। श्योर मैम। वो दिखेगा कैसे आपको बताती हूँ। खैर वो आपको समझ में आ जाएगा, जो भी आएगा उसमें 5 चीजें दिखता है, मुझे वो पेज का लिंक भेजना। ओके मैम। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है 16 पर्सनालिटी, उसमें यस। आपका एक टाइप निकलेगा। हम्म। तो वो टाइप आप भेजना और इस तरह से उसमें 4-5 चीजें लिखी रहेंगी, वो भेजना। ओके, परसेंटेज वाइज। हाँ, ये परसेंटेज वहां पे दिया होगा। आप ओके ओके। आप खाली ओके। वो स्क्रीनशॉट लेके भेजना। ठीक है, ओके मैम। तो स्क्रीनशॉट जैसे लेके भेजेंगे, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एंटर किसी का मैंने टेस्ट किया था, तो उसका पर्सनालिटी टाइप है एंटरटेनर, ESFP A। ठीक है, तो उसका ये सब आया था। तो उसमें उसमें उसके 4 ट्रेट दिखते हैं। ओके। सेंसिंग एक होता है, सेंसिंग का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ओके। आपके हर एक पॉजिटिव क्वालिटी के साथ एक नेगेटिव क्वालिटी जुड़ा ही हुआ है, राइट। सही बात है, सही बात है। कॉइन का हेड एंड टेल दोनों होता है ना, आप यस मैम। टेल को तो अलग नहीं कर सकते हो। नहीं। तो लेकिन वो नेगेटिव है, जैसे गोल्ड में थोड़ा सा मिलाया जाता है ना, मिलावट किया जाता है, वो स्ट्रांग रहेगा करके। ये पता था आपको? क्या मैडम? गोल्ड गोल्ड का रिंग या फिर यस। जो भी जेवर बनता है उसमें थोड़ी सी मिलावट करते हैं, हाँ एकदम हाँ। प्योर होता है तो वो बहुत वीक होता है। उसमें यस। थोड़ा मिलावट करते हैं ताकि वो स्ट्रांग रहे। यस मैम। ऐसे ही हर एक बंदे के साथ वो नेगेटिविटी थोड़ा सा रहता है ताकि वो स्ट्रांग बना रहे। एकदम प्योर हो जाएगा तो इस दुनिया में सरवाइव करना मुश्किल है। यस मैम। इसका मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव भी आपका एक एक तरह से स्ट्रेंथ है। ठीक है, यस मैम। तो वो स्ट्रेंथ को मैं अल्टर्ड स्ट्रेंथ बोलती हूँ। अल्टर स्ट्रेंथ। अल्टर्ड ओके। अल्टर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, हो गया। यस मैम। तो पहला जब टेस्ट किए तो 5 आपके स्ट्रेंथ निकले थे। सेकेंड जो टेस्ट किए आपके पर्सनालिटी टाइप निकला, उसमें आपका उसमें फिर उसके बाद आपका पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज निकले। ठीक है, 5-5-10 और 5 नेगेटिव क्वालिटी जो अल्टर्ड स्ट्रेंथ है, तो 15 हो गए। और एक स्किल आपका, कोई भी स्किल स्किल बताएं आप अपना, क्या स्किल? पेंट पेंटिंग आता है मैम। पेंटिंग आता है, रुकिए। स्किल में आपका पेंटिंग आता है, मैंने लिखा है यहाँ पे स्किल इज पेंटिंग। ये एक स्किल हो गया और एक रीड हाँ, रीडिंग रीडिंग करने का थोड़ा ज्यादा शौक है। रीडिंग। अभी रिसेंटली क्या पढ़े हैं? अभी तो काफी दिनों से पढ़े नहीं है, मुझे पता चल रहा है। नहीं नहीं, ये बुक है मैडम, लाइव ये। क्या है? लाइफ लेसन्स। यस, लाइफ लेसन्स फॉर लविंग वे यू लिव, 7 essential indigenous for finding balance and serenity। हम्म, ओके, ठीक है, रीडिंग का शौक है। तो ये 2 स्किल हो गया, मतलब एक स्किल हो गया और एक दूसरा आपका एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, और कुछ है? एक और आप सिविल इंजीनियर हैं। ठीक है, यस। तो आपके 18 हो गए। ठीक है, तो आप कोई भी स्टोरी अपने बारे में बनाते हैं ना 5 एस्पेक्ट को लेके 18। आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता होगा। यस मैम। कॉम्बिनेशन आता है आपको? क्या? कॉम्बिनेशन आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन?
स्कूल के दौरान आता था। अभी मैथमेटिक्स यानी आई गॉट 100 out of 100 इन 10th स्टैंडर्ड इन मैथमेटिक्स। हम्म। तो कॉम्बिनेशन तो आना चाहिए। अभी भूल गए मैडम, अभी काम नहीं है तो। हाँ ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो है, अगर आप, आपके पास मान लीजिए बहुत सारे चॉइसेस हैं, उसमें से आप 5 चीजें उठा के एक स्टोरी बनाओगे अपने बारे में, ठीक है। ओ, तो ओके। 18C5 आप निकालो, इसका कितना होता है। 18C5 मतलब ऊपर आप ले 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14, इतना कीजिए मल्टीप्लाई वहीं पे। क्या मैडम? 18C5 का मतलब होता है 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14। सर के ऊपर से गया। यस मैडम। हाँ, इसका मतलब मैथमेटिक्स आप ऐसे ही तुक्का मार के पास किए थे यार। नहीं मैडम, मेहनत तो की थी ना। हाँ, मेहनत अगर किए थे तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि आप अगर एक अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करके देखिए। 18 कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास मान लीजिए कि 18 जोड़ा कपड़ा है, ठीक है। ओके। हम्म। उसमें से 5 जोड़ा कपड़ा लेके आपको कुछ बनाना है, हम्म। ठीक है। तो आप ओके। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। 18 से आप मान लीजिए कि कपड़ा नंबर 1, कपड़ा नंबर 2, कपड़ा नंबर 3, 4, 5, 6 करके ऐसे 18 टाइप का बना दिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ना मैडम? इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है ठीक। ठीक है। ओ, प्रोबेबिलिटी पे जाऊंगी तो और परेशान हो जाएंगे आप। तो ये जो है 18C इंटू 5, इसका मतलब है 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14, ठीक है। यस। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 लाख से ज्यादा होगा। हम्म। 7 लाख से ज्यादा स्टोरी आपकी बन सकती है, जितना आप ओ, जितना आप अभी गिनाए हैं, ठीक है। आपने गिनाया है ना। यस मैम। और अभी पर्सनालिटी टेस्ट आपको करने के लिए बोल रही हूँ, जब वो बन जाएगा तो आपको मिलेंगे और भी, भाई। हम्म। स्टोरी बनने के लिए सिर्फ 5 एलिमेंट लेने से हो जाता है। ओके। तो आपका 7 लाख से भी ज्यादा स्टोरी बन सकती है। आपको कितना पता है? बहुत कम हो पता है मैम। आपको 10 पता है क्या? 10 स्टोरी अपने बारे में लिख सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो लिख दूंगा मैडम। गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप लिख नहीं लिख सकते। लिख दूंगा मैडम। अच्छा ठीक है, 10 स्टोरी आप लिखिए। और फिर हम देखते हैं कि वो 10 स्टोरी में आपने लिखा क्या है, राइट। ओके। उसको कॉम्पिटेंसी स्टोरी बोलते हैं। क्या? यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। ओके ओके मैम। दिख रहा है? ये अभी आपको पता नहीं था ये क्लास ज्वाइन करने से पहले कि 7 लाख स्टोरी बन सकते हैं आपके बारे में, राइट। यस मैम। मैं आपको ये पूछती हूँ, क्या क्या आपके बॉस को पता है ये जो क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज आपने गिनाए?
नहीं पता है मैम। हाँ, जिसको आपके बारे में पता ही नहीं है, वो क्या ओपिनियन देगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। आपके आपके जो कलीग है, जो आपने बोला कि प्रैंक प्ले करता है लाइक एन एनिमी, क्या उसको पता है? नहीं पता। तो फिर वो क्या करता है, उससे फर्क क्या पड़ता है। सही बात। तीसरी बात, क्या उसको पता है कि आप उससे गुस्से में हो? उसको फेस से और बिहेवियर से पता चलता है मैं गुस्से में हूँ ऐसा। आपने उसको बता दिया फेस और बिहेवियर से कि आप गुस्से में हो? ऐसे तो 100% नहीं बता पाऊंगा मैम। हाँ, तो आप बिल्कुल 100% आपको पता नहीं है कि उसको पता है कि नहीं पता है। यस मैम। अगर किसी के बारे में आपको पता चलता है कि वो आपसे गुस्सा है, मान लीजिए कि आपने कोई गलती कर दी, तो आपसे भी कोई गुस्सा हो सकता है। यस। हम्म, अगर गुस्सा होता है और आपको पता नहीं, हम्म। ठीक है, वो बंदा गुस्सा है क्योंकि जानबूझ के तो आपने गलती नहीं की ना। नहीं मैम। हाँ, तो अगर आपको पता नहीं है कि वो गुस्से में है, और किसी दिन उसके व्यवहार से आपको पता चले कि वो गुस्सा है आपसे, व्हाई कांट यू सेटल डाउन? आपका ये सबसे बड़ी गलती, मतलब खराब क्वालिटी में है कि यू आर नेवर सेटल्ड। यू आर ए वेरी अनसेटल्ड काइंड ऑफ थिंग। अभी मैंने आपकी खराब क्वालिटी नहीं गिना है, लेकिन यू आर वेरी अनसेटल्ड, यू आर नॉट फोकस्ड, राइट? सो हम उस पे भी काम कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो आप हो ना, ये जो उसको मैं यहाँ पे लिखती नहीं लिखती, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब जो खराब चीज है ना, उसको रिकॉर्ड करने से वो बढ़ जाता है। ओके। तो कोई भी खराब चीज अगर आपको लगा कि अपने बारे में कि ये मेरे में खराबी है, तो आप उसको ना एक एक पेपर, जो वेस्ट पेपर जिसको आप फाड़ के फेंक सकते हो, उस पेपर में आप लिख दो, ओके। करके उसको फाड़ के फेंक दो। तो वो जो खराब चीज है था, हमारे हर किसी में कभी ना कभी थोड़ी सी खराबी आ जाती है। सही बात। व्हाट डू वी डू अबाउट दैट? उसको एक पेपर में लिख के ना फेंक दो, फाड़ के। आप उसमें पढ़ लो कि दिस वाज द बैड थिंग अबाउट मी टुडे, करके उसको फेंक देना, राइट? यस। So that was about you. That can be about others also. ओके। जो दूसरा बंदा प्रैंक आप पे खेला, आपको पेनल्टी पड़ गया, you can also do the same. Like say, I forgive that person that he ओके। played a prank with me, and I forgive my boss that he has been listening to that person without ओके। listening to me. Still, I forgive him because he doesn't know me. करके आप ना फॉरगिव वाला चीज आप अपने डायरी में लिखो, ओके। गुस्सा वाला चीज लिखो और फाड़ के फेंक दो, ओके। राइट? तो आपके ये जो कॉम्पिटेंसी स्टोरीज आपके लिखे जाएंगे। अभी अभी मैं आती हूँ जो प्रेजेंटेशन है हमारा, राइट? यस जो मैं पढ़ाती हूँ बेसिकली, ये दिख रहा है आपको? मैम। यस। देयर आर, इनहांसमेंट पोटेंशियल। क्या दिख रहा है अभी? क्या दिख रहा है अभी? इन इनहरेंट पोटेंशियल। इनहेरेंट पोटेंशियल आपको दिख रहा है? यस मैम। Then that was not the case. ये दिख रहा है अभी? 10 स्ट्रेटेजी टू क्रिएट माइंडसेट। यस मैम अभी। क्या दिख रहा है, आप पढ़िए। 10 10 strategy to create a miracles mindset for clarity। मिराकुलस माइंडसेट। miraculous mindset for clarity,
फुलफिलमेंट एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ। क्या समझ में आया इससे? 10 कुछ तरीके हैं जिससे हमारा मन में क्लैरिटी आएगी, हम्म उसको कैसे फुलफिलमेंट कर सके, और हमको कैसे ज्यादा आगे बढ़ा सके, ऐसा। राइट। तो फुलफिलमेंट का क्या मतलब समझते हैं आप? फुलफिलमेंट एक यानी कोई भी हाँ, बताइए। किसी भी गोल या कोई भी टारगेट लिया हो, उसको अच्छे से सोर्स देते हुए या उसका मदद करते हुए उसको अचीव करना, फुलफिलमेंट करना, ऐसा। अच्छा, वो आपकी समझ में फुलफिलमेंट है। एक्चुअली क्या है ना, ये सेटिस्फेक्शन का एक और तरीका है। ओके मैम। मतलब आप ना मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत अच्छे से अचीव कर जाते हैं। टोनी रॉबिन्स का नाम सुना है? सॉरी मैम। टोनी रॉबिन्स का नाम सुना है आपने? यस मैम, यस मैम। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि उनके मिलियनेयर क्लाइंट्स हैं, मिलियनेयर वाले स्टूडेंट्स हैं, यस। वो भी अनफुलफिल्ड महसूस करते हैं खुद को। यानी सोर्स की कमी या कोई हमको मदद नहीं कर रहा है, ऐसा सोचना, बराबर ना? मिलियनेयर के पास तो कोई मदद करे नहीं करे, पैसा तो है ना। हाँ, वो विथ फाइनेंशियल, उसके पास 2% 2000% भी सपोर्ट होगा, पर फैमिली या सोसाइटी का या साइकोलॉजी या मेंटली सपोर्ट नहीं होगा, तो वो फुलफिलमेंट नहीं महसूस कर पाएगा। वैसे नहीं होता, कोई आपको दे। इट इज हाँ। ए लीडर इज समबडी हु इज सेल्फ कंटेन्ड, वो ओके, ओके मैम। नहीं करता। यस मैम, आई गॉट इट। एंड द पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अदर्स, ना कि एक्सपेक्ट करता है कि कोई उसको दे। ओके। A leader is one who doesn't expect the others to behave perfectly towards him. A leader is one who himself herself behaves perfectly towards others. वो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से मैं ऐसे हो गया, उसके लिए ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ इस करके ऐसे हो गया, ये लीडर्स नहीं बोलते। ओके। तो अगर मान लीजिए कल को, इफ यू आर ए पर्सन, कल को बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका हो गया, ठीक है, अभी यस। आपकी सैलरी जितनी है उसका 3 गुना सैलरी हो गया, अगले साल आपका उसका 10 गुना सैलरी हो गया। हम्म। ऐसे लोगों के साथ हुआ है। यस। आपको क्या लगता है कि उसको बड़ी खुशी होनी चाहिए? उसको तो खुशी तो होगी ना मैम। होती है? ऐसा आपको लगता है? हाँ। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप अभी आपके एस्पिरेशन में है। ओके। आपको लगता है बिकॉज इट इज नॉट येट अचीव्ड बाय यू। ओके। द डे यू विल अचीव, आपको लगेगा कि ये क्या था यार, इतना होना चाहिए मेरे पास। आपने वो स्टोरी हम्म। इसमें किसी ने बोला कि अरे तू खुश कब हो जाएगा? यार अभी तो पढ़ाई खत्म हुई है, अगर मेरी नौकरी लग जाएगी मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। हम्म। नौकरी मिल गई, अब तो खुश होगा ना? नहीं यार, शादी नहीं हुई ना अभी, शादी कर लूं खुश हो जाऊंगा। शादी हो जाती है, खुश है अभी, नहीं अभी बच्चे नहीं हुए ना, खुश हो जाऊंगा जब बच्चे होंगे। बच्चे हो गए, अच्छा अब तो खुश हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, बच्चों की पढ़ाई है ना, तब खुश हो जाऊंगा। बच्चे पढ़ गए, तो उसके बाद अभी तो बच्चे पढ़ लिख गए, अब खुश है? नहीं, उनकी नौकरी हो जाए तब खुश हो जाऊंगा। अच्छा, नौकरी लग गई, अब खुश है? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई, खुश हो जाऊंगा। शादी हो गई, अब खुश है? नहीं, उनके बच्चे नहीं हुए ना, एक पोता खिला दूं तो हो जाऊंगा खुश। पोते हो गए, अब खुश है? यार इनकी पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगी? मतलब
आपके एस्पिरेशन बढ़ते जाते हैं। यस मैम। अभी आपके पास अगर 10 लाख है तो आपको 1 करोड़ की चाहत होगी, 1 करोड़ हो गए तो हो जाएगा, ऐसे ही होता है, एक्सपेक्टेशन इज ऑन एंडिंग। यस। लेकिन आप किसी भी हालत में हो, अभी अगर आप खुश हो, देन यू आर रियली हैप्पी, राइट? यस। हु दिस इज फॉर? तो अभी आप थोड़े शांति से बैठा करो, डिस्टरबेंस होता है बोलने वाले को भी। सॉरी मैम। क्या हो रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन? एक्चुअली आई मेरे हाथ में मोबाइल रखता हूँ, मेरे इधर रखने की जगह नहीं है। क्यों? सामने आपका दीवार है? दीवार पूरा ऐसा है। हाँ, तो उसी के ऊपर रखिए, वहां पे अगर कोई थोड़ा चेयर। कंफर्टेबल है तो। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, तो आर यू सेटल्ड? यस मैम। ओके। हाँ, यस। सो ये एक्चुअली थोड़े से सीनियर लेवल है, जो बंदों का काम अभी वो मैनेजर लेवल पे हैं, उनका काम है, तो वही लोग 6-7 साल हो गया काम करते हुए, तो वही फील करते हैं स्टक एंड ऑल फुलफिल्ड। ठीक है, तो व्हाई यू फील यू आर स्टक, इसमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो? यस। इसमें अगर देखेंगे, जो नीला वाला पोर्शन है, उसको अगर पढ़ेंगे ऊपर से नीचे, क्या क्या है उसमें? रिसोर्स। रिसोर्स। यस। तो मैं जो पढ़ाती हूँ दैट इज अबाउट रिसोर्सफुलनेस, राइट? ओके। तो रिसोर्स, रिवार्ड, एक्सपर्टाइज, सैलरी रेज, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्निशन, इंसेंटिव, ये सारे चीजों के पीछे बंदा पड़ा रहता है, अगर वो सही। वर्किंग प्रोफेशनल है तो। सही बात है। वो एक चीज जिसके पीछे नहीं पड़ा होता, वो है लीडरशिप ग्रोथ। ओके। लीडर्स, आज हमारी चैट पे जब बात हो रही थी, तो लोगों को लीडर कौन होता है पता नहीं था, राइट? जब आपको पता ही नहीं है लीडर, तो लीडरशिप ग्रोथ का क्या पता होगा? सही बात है। अभी आपको मैंने बताया कि भाई, लीडर वो होता है जो बिना एक्सपेक्टेशन के देते रहता है। द पर्सन, आपको, आपने बोला ना कि फेम आपको चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, ये वो चाहिए। फेम कैसे होता है? दूसरा आपको एडमायर करे तो आपका फेम होगा ना। यस बराबर। तो दूसरा आपको एडमायर कैसे करेगा? जब आप कुछ देंगे तब एडमायर करेगा, जब सही बात। उसको आप किसी तरह से हेल्प करेंगे तभी एडमायर करेगा। हाँ हाँ। तो ये जो ऊपर से नीचे तक लिखा है, जिसकी वजह से बंदे परेशान रहते हैं, इसमें से कुछ किसी को देना लिखा है थोड़ा ही। ये अपने बारे में सोच है, हम्म। इट इज नॉट अबाउट अदर्स। हम देते किसी को कुछ नहीं, एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो बंदा हमको अप्रिशिएट करेगा, एडमायर करेगा, रेस्पेक्ट करेगा। ओके। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? नो मैम। खाली पीली कोई किसी को क्यों एडमायर करेगा? आप किसी नहीं के करे। काम भी नहीं आए, राइट? सो यस मैम। देन यू, आप किसी के काम के बनते हैं ना, देन योर लीडरशिप क्वालिटी स्टार्ट्स ब्लूसमिंग। ओके। जब वो ग्रो होने लगता है, देन यू बिकम, यू क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग फेमस समडे, राइट? यस। आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है? यस मैडम।
ये YouTube चैनल में अब अपडेट हो जाएगा, डोंट नीड, यू डोंट हैव टू राइट। ओके सो आई, ठीक है, अभी तो मैं पूरा सुनता हूँ, बोलो। So that is what, no, you have to know what resources are available to you. वो कैसे पता चलेगा? लाइक से द वे यू आर सेइंग ना, आप कंसिस्टेंट रहते हो, क्रिएटिव रहते हो, एंड प्लानिंग करते हो। यस मैम। With all these qualities, if you forget to look into the opportunities around, ओके। आपके सारे कोशिशों में पानी फिर जाता है। हम्म। सारा कुछ कर रहे हो लेकिन आपको दिख ही नहीं रहे हैं रिसोर्सेज, मतलब अकेले तो नहीं कर पाओगे ना सारा कुछ। नहीं कर पाऊंगा। So if you are not able to recognize the resources, you will not be able to grow, right? ओके यस मैम। Is the second quality of a leader, resourcefulness. रिसोर्सफुलनेस। और मेरा जो स्पेशलिटी है, आप कैसे भी हो, आप में रिसोर्सफुलनेस पैदा करने की कैपेबिलिटी मुझ में है। कैसे है? वो ऐसे है कि ऑलरेडी आप पैदा हुए हो उस स्किल के साथ, मुझे सिर्फ रिकॉग्नाइज करके उसको बढ़ावा देना है, मैं वो करती। ओके। आई एम ए लीडरशिप ग्रोथ मेंटर, और जो स्किल आपको सिखाती हूँ वो है रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग। रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग, ओके। राइट? यस। सो अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे फॉर्मूला क्या है। मैं 10 स्ट्रेटेजी जो बताई उसमें से उसके स्ट्रेटेजी सब ऐसे हैं, तो मैं कंसिस्टेंट फॉर्मूला बोलती हूँ। ठीक है? यस मैम। तो इसके बारे में बात करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी, ये आपको यूट्यूब में भी दिखेगा, आप आराम से इसको पॉज करके जितना नोट लेना है ले सकते हैं। राइट? ठीक है मैम। हाँ। तो और लीडरशिप जो मिराकुलस माइंडसेट होता है, वो मिराकुलस माइंडसेट में ये होता है कि आप बड़े खुश होते, बड़े खुश रहते हो। आप जब खुश रहते हो, आपसे बहुत सारे काम होते हैं। सही आप बात। आपको सब सभी कोई सपोर्ट करने आ जाते हैं। जब सपोर्ट करने आ जाते हैं तो आपको बंदे मिल जाते हैं। यस। ह्यूमन रिसोर्सेज एक रिसोर्स है। यस। और जब आपका काम में हाथ बढ़ाने के लोग आ जाते हैं तो आपका टाइम सेव होता है। यस। टाइम इज अनदर रिसोर्स। और क्योंकि ये आप सेव करते हो, लोगों का विश्वास, ट्रस्ट आप लेते हो, दैट इज सोशल रिसोर्स। ओके। देन बिकॉज ऑफ ऑल दिस, आपको हर किसी चीज में पैसा लगाना नहीं पड़ता। उतना पैसा लगाना नहीं पड़ता जितना आप लगाते अदरवाइज। जैसे फॉरेन में है, कोई किसी को हेल्प नहीं करता, करता है तो फिर पैसे के बदले करता है। फॉरेन में कितना पैसा खर्च होता है। तो आप पैसा सेव करते हो, पैसा इज अनदर रिसोर्स। सो यू बिकम रिसोर्सफुल विथ टाइम, फ्रेंडशिप, राइट, एंड रिसोर्स, पैसे से भी। ओके। So how do you develop your miraculous mindset has these 10 aspects? जब आपके क्लैरिटी और विजन होते हैं, ओके। कोई आपको ट्रस्ट कैसे करने लगेगा? जब उसको आपके काम में अपना फायदा नजर आएगा। 100% राइट मैम। तो अपना फायदा कैसे नजर आता है? कैसे कैसे ऐसे होगा? कौन सा काम होगा जिसमें उसको भी आपके काम में फायदा नजर आता है? उसके बारे में सोचना पड़ेगा या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमको पहले सोच के उस हिसाब से अपने को काम ऐसे करवाना पड़ेगा। कितने लोगों के बारे में आप सोच पाओगे? मैं तो अभी 20-25 लोगों के बारे में ही सोच पाऊंगा और ज्यादा नहीं। मैं 1 बिलियन लोगों के बारे में सोच पाऊंगी। हाउ? ओ, देयर इज ए ट्रिक टू इट। ओके। मैं बताऊंगी वो कैसे करते हैं। राइट? यस। तो यस मैम। आप देख लो, क्लैरिटी ऑफ विजन,
विजन इज समथिंग विच इज बियॉन्ड यू। ओके। छोटी सोच नहीं, बहुत बड़ी सोच को विजन बोलते हैं। वो वाला ड्रीम जो आपको इम्पॉसिबल लगे वो है विजन, राइट? यस मैम। अगर आपके पास होगा तो सभी को इम्प्रेस होता है, सभी को लगता है कि आप विन करोगे तो उनका भी विन होगा, राइट? सो यस आप ऐसे एक विजन के बारे में सोचो। सेकेंड इज फैसिलिटेट एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो काम करने के लिए निकल जाते हो और दूसरा भी जब काम करता है तो आप हजार अड़चने पैदा करते हो ताकि वो नहीं कर पाए। आई एम टॉकिंग अबाउट ए लीडर। लीडर यस। जो होते हैं, हम जो आज के दिन में बात कर रहे हैं, बॉस को हम लीडर मान रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट द बॉस, इट इज अबाउट यू। वेदर यू आर द बॉस और नॉट, आप लीडर बन सकते हो। ओके। सो एवरीबडी इज अ लीडर। अगर आपने स्टीवन कोवे को पढ़ा हो तो ही वाज, वो अभी एक नासा के ऑफिस में गए थे। नासा तो पता है ना? यस मैम। नासा जो रॉकेट रॉकेट छोड़ता है, हाँ, राइट? अमेरिका। बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत सारे यस। लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो वहां पे बड़े बड़े लोगों का तो बड़ा बड़ा विजन हो सकता है, उन्होंने सोचा। तो उन्होंने यस। देखा एक बंदा झाड़ू लगा रहा था। वो उसको जाके पूछे कि सोचे मन में कि क्या इसका भी कोई विजन है। सो जाके पूछे कि भाई तू क्या कर रहा है? तो बोला कि आई एम हेल्पिंग अमेरिका टू सेंड इट्स स्पेसशिप टू द स्पेस। कर क्या रहा था? झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा। बाय डूइंग दैट ही इज हेल्पिंग नासा टू लॉन्च द स्पेसशिप टू द स्पेस। वो बोल स्पेस। रहा है, उसका विजन देखिए। कोई उसको बोल नहीं रहा है, लेकिन झाड़ू, अगर मान लीजिए आपका घर साफ नहीं होगा, आपका एरिया साफ नहीं होगा, काम करने का मन होगा क्या? नहीं होगा मैम। तो ही वो क्या कर रहा था? वो फैसिलिटेट कर रहा था। जो खाना बनाने वाले हैं, ठीक है, आर्मी में खाना बनाते जो लोग हैं, आपने देखा होगा। वो देखा यस था मैम। ना आपने, वहां पे खाना बनाता है पुनीत। हाँ, यस मैम। वो कौन सा फिल्म है वो, स्वदेश या फिर क्या, परदेश या स्वदेश कुछ है। हाँ हाँ जिसमें खाना संदेश आते हैं, गाना जिसमें है हाँ हाँ। वो। I I am NCC cadet and I do army attachment camp also during my college life. हाँ, आपको अभी आपको याद आ गया, ठीक Yes है? ma'am. तो कहने का मतलब है कि बंदा कुछ भी कर रहा हो, he can contribute towards the bigger vision, Yes. बशर्ते उसको खुद को पता हो कि करना उसको क्या है। उसका खुद का विजन अगर बड़ा नहीं है, मन बड़ा नहीं है, तो फंस जाएगा वो कि वो सामने वाला बंदा बॉस के साथ मिलके क्या झगड़ा कर रहा है आपके साथ। हम्म। सही बात। तो इफ यू, ये हाथ उंगली आप सामने रखो, उंगली के बाद वाला दीवार आपको दिख रहा है? क्या मैम? ऐसे अगर उंगली रखोगे तो आपको उंगली दिख रहा है ना? यस मैम। उंगली के बाद वाला हिस्सा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा मैम। तो उंगली को थोड़ा दूर ले जाओ, हाँ। अब दिखेगा। अब हाँ, धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। हाँ, सो व्हाट डज दिस मीन? ये है कि जो आपके दृष्टि को ब्लर किए हुए है, उस चीज को आप अपने से दूर हटाओ। ओके। और वो चीज फिजिकल चीज भी नहीं होती है, दैट इज योर थॉट्स। ओके। सबसे बड़ा ब्लर करने वाला विजन है थॉट्स, एक्शंस, हैबिट एंड परसेप्शन। जो आपके थॉट्स को धुंधला बनाते हैं, वो मैं बताती हूँ आगे चल के। तो आप उसको फैसिलिटेट करो, दूसरे बंदे को भी काम करने दो, उसको भी एक बड़ा सा गोल अचीव करना है।
थर्ड इज इनोवेशन, ये तो आपको पता है, नई चीजें करना। जब तक आपके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे, आपको रिसोर्सेस पहचानना नहीं आएगा, यू विल नॉट बी इनोवेटिव। सो ये याद रखिए, ये मिराकुलस माइंडसेट की 10 कैरेक्टरिस्टिक मैं दे रही हूँ आपको। फोर्थ है स्टार्ट स्मॉल। आज के आज अगर आप ताजमहल बनाना चाहोगे, नहीं बन सकता है, लेकिन आज अगर आप छोटा सा फाउंडेशन स्टोन डाले, हो सकता है 7 साल बाद वो ताजमहल बने। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन और कंसिस्टेंसी, कितना आप करते हो, राइट? तो आज के दिन में ऑलवेज ए बिग विजन, द जर्नी ऑफ 1,000 miles starts with just the first step. So start small always. Integrate experience is something, फिर से लिखने लगे क्या? नहीं मैम। इंटीग्रेट एक्सपीरियंस, कई सारे एक्सपीरियंसेस आपके हो जाएंगे, वो सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करो और उससे कुछ आगे बढ़ो, राइट? ओके, यस। हाँ, देन बिकम ऑब्जर्वेंट। कैसे आपको रिसोर्सेस का पता चलेगा? ये रिसोर्सेस कैसे होगा आपको पता है? आपको अपने अपने पूरे दिन के बारे में सोच के आपको पता चलेगा, और दूसरे ने क्या किया उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा। कोई अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, दूसरे लोग बात कर रहे हैं, कुछ उनकी बातें कुछ कान में आपके पड़ गए, उससे आपको समझ आएगा। उसी टाइम में वो लोग वही बातें क्यों कर रहे थे, अगर आप ध्यान दोगे, इट इज ए मैसेज टू यू फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको वो सुनना था, यस राइट? मैम। कोई बंदा आपके सर्कल में क्यों आता है, देयर इज ए पर्पस। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, या फिर आप किससे कनेक्ट हो रहे हो, all of that has a purpose, यस right? यस And build a team, make 1% improvement daily, be solution focused. आज जब हम बात कर रहे थे, when I was chatting, I was saying कि अगर आपका फोकस प्रॉब्लम पे है, यू कैनॉट सी, ये जो उंगली आपने देखा ना, ये प्रॉब्लम है। इफ योर यस फोकस इज ऑन उंगली, यू विल नॉट बी सीइंग बियॉन्ड। अगर आपका फोकस बियॉन्ड है, आपकी उंगली नहीं दिखेगा। सही। सो क्या ये सब बहुत बड़ी बातें हैं? नो मैम, सिंपल सी बातें हैं। सिंपल। तो लाइफ में ऐसे ही सिंपल बहुत सारी बातें हैं जो आपको बड़ा बना सकता है। यस मैम। आप रोज अगर खुद को ऑब्जर्व करो, देन देयर विल बी वेरी सिंपल, वेरी छोटा थिंग। किसी ने कुछ बोला, अगर आप मुझे आधा घंटा बताओ कि आपके बॉस ने या फिर किसी से भी आपकी बात हुई, उसने क्या बात की, तो आपको मैं 30 चीजें निकाल के दे सकती हूँ जो आप सीख के आगे बढ़ सकते हो, राइट? ओके। इट इज दैट पॉसिबल। यस। सो ये जॉब वालों के लिए मैंने कुछ बनाया था कि कैसे आप जॉब ढूंढोगे। पहले तो आप रिज्यूमे के बारे में कुछ गलतियां कर देते हैं, ये आपको जरूरी नहीं है तो फिर नहीं करते हैं, सम अदर डे वी विल डू। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स जॉब के बारे में, जब रिज्यूमे और जॉब ढूंढने के बारे में है। रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग का स्ट्रेटेजी फिर मैं आपको बताती हूँ। It is about being resourceful is about utilizing existing resources in an optimum way. मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैं एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, आप बाद में गूगल कर लेना, वो टाइगर रिजर्व है, वहां पे फेंस नहीं है, टाइगर खुले में घूमता था। तो आई वॉज गिवन दैट एरिया। उस एरिया में लोगों के लिए 3 महीने का खाना था, बाकी सारा टाइम का खाने के लिए उनको जंगल पे डिपेंडेंट होना था। तो जंगल में घुसेंगे, कोर में जाएंगे जहां पे बाघ है, बाघ से आमना सामना होगा तो बाघ मार देगा ना। सही है। इट वॉज हैपनिंग लाइक दैट। तो मुझे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि वहां पे क्या करो ताकि लोगों को सफिशियंसी आ जाए, खाना मिले। सो आई लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट विथ दोज पीपल।
4 साल मुझे लगे वहां पे बदलाव लाने के लिए। 4 साल के बाद लोगों के पास इतना पैसा हो गया, इतना सारा खाने के बाद में इतना सारा हो गया, तो 4 साल में मैंने एक एरिया की भूखमरी मिटाई थी। सो आई कुड Yes. अचीव दैट बिग थिंग। मेरे पास कौन थे, जंगल में रहने कौन आता है? सो देयर वाज नो मैन पावर फॉर मी। कोई मैन पावर Yes. नहीं था। मैं तो जंगल में, मुझे घर भी नहीं था, किसी के घर में मैं एक साइड रूम लेके रह रही। कोई पानी, टॉयलेट का कोई व्यवस्था नहीं था। मैं जैसे वो लोग करते हैं वही कर रही। 4 साल। तो व्हाट रिसोर्सेस आई हैड, लोग जो मेरे इर्द गिर्द थे, और वो जंगल वाले थे। जंगल के पे भरोसा कौन करता है? जंगली ही। 4 साल के बाद वही लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड जो होता है कलेक्टर के अंडर में, उसके मेंबर बने। सो आई ट्रांसफॉर्म दोज पीपल इनटू दैट। Okay. तो मैं ये कर सकती हूँ। आप सामने कोई भी हो, आई कैन ट्रांसफॉर्म। और ये लोग 17 अवार्ड जीते जो मेरे इसमें होगा। ठीक है। एक अवार्ड तो नरेंद्र मोदी से भी जीते जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर थे। राइट। सो व्हाट रिसोर्सेस आई हैड, आई हैड नो रिसोर्स। बाहर वाले को पता नहीं चला। मेरा जो सीईओ था मुझे बोला कि तू वहां पे पहुंच जाएगी ना, दैट इज इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। वो एरिया उतना रिमोट, Danger. Remote area. तो खाली पहुंची ही नहीं, उस एरिया को बदल ही दिया। राइट। सो आई कुड डू। लोग बोलते हैं ना 70 साल हो गए इंडिया को नहीं मिली। इंडिया को मैं नहीं मिली थी। राइट। एंड मेरे जैसे बहुत सारे लोग बन सकते हैं, ये मेरा बिलीव है। क्योंकि वहां पे जो लोग बदले खुद को, मैंने तो नहीं बदला ना, उन लोगों को मैंने बदला। वो Yes. खुद अपने फ्यूचर बदल दिए। सो आई कैन Hmm. टीच एनीबॉडी ना। वो तो पढ़े लिखे Yes. थे नहीं, जंगली थे। तो जो पढ़ा लिखा होगा मैं कितना बदल सकती हूँ उनको? नहीं बदल सकते। बिल्कुल उस बदल। उसका पानी पानी का ग्लास पूरा भरा रहता है, वो खाली करेगा बाद में भरे। क्यों? आप कौन हो? आपका गिलास खाली है भरा है? फ्यूल इन फ्यूल आउट करना पड़ेगा। हाँ। सो आई विल कंपेल यू टू डू दैट। राइट। यस। यस। तो आप तो मेरे पहले कई सारे वेबिनार में आए नहीं। नहीं आया। राइट। सो आपका ग्लास भरा था, बट आई यस। एम्प्टीड योर ग्लास टुडे। आप अगर चांस मुझे दोगे, सो आई विल चेंज यू इनटू समथिंग एल्स। बट लोगों को तो ट्रस्ट ही किसी पे नहीं है ना। तो उनको तो यहाँ तक की तमीज भी नहीं है कि आप एक ग्रुप में हो एंड somebody is telling you, giving you repeated communication, उसको रेस्पॉन्ड कर दें, ईमेल पढ़ के रेस्पॉन्ड कर दें। इतनी तमीज भी नहीं है, इतनी तमीज भी नहीं है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया की सारी तमीजें, मतलब सारी वाहवाही इनको मिल जाए। वो डिजर्व ही नहीं करते। राइट। यस। यस। सेकंड राइट। थिंग इज, हाँ, बीइंग रिसोर्सफुल अंडर मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस। ये जो रिसोर्सफुलनेस है ना, वो खाली एक ही प्रोजेक्ट नहीं था जहां पे मैंने खुद को प्रूव किया। अभी मैं अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम कर रही हूँ, जहां पे 9 करोड़ घर बनाने का मेरा विजन ड्रीम है। आप बहुत मतलब हैरान परेशान हो जाओगे जैसे जैसे विजन में रखती हूँ। हाउ डू आई डू दैट? और अगर मैं न्यूज़पेपर वालों को पकड़ के अपने बारे में स्टोरी लिखती तो बहुत बड़ा होता, मेरे बारे में जानते। वो नहीं करती ना मैं। लेकिन बदले में क्या है, आई एम सो हैप्पी। लाइफ में मेरे प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम, ये ये जो है ना, प्रॉब्लम फोकस नहीं। राइट। सोल्यूशन फोकस्ड हूँ। यस। तो सॉल्यूशन फोकस। प्रॉब्लम जो होते हैं वो एक ही तरह से नहीं आते, एक बार नहीं आते, वो कई बारी आते। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बारी बारी अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तब आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को। तो लोग जानने शुरू करते हैं कि अच्छा, योगेश जो है
अरे यार इसके पास जाओ, कोई प्रॉब्लम आए तो इसको तो हमेशा सॉल्व करने आता है। आपने बोला ना कि आप सोल्यूशन फोकस्ड हो, सो आपकी ये जो क्वालिटी है ये निखर जाएगा और इफ यू कम टू दिस ट्रेनिंग, क्योंकि आपको यस, एक डिसिप्लिन के अंदर वो आगे बढ़ाना है, राइट। ट्रूथ क्या है रिसोर्सफुल पर्सन की? एक रिसोर्सफुल पर्सन ही को रिकॉग्निशन मिलता है, ग्रोथ उसका होता है, सभी को पता है, कोई नहीं अप्लाई करता। सेकेंड थिंग इज, अगर आप रिसोर्सफुलनेस आप में है तो आप रेजिलियंट हो, राइट। थर्ड है, स्ट्रगल आपके ओवरकम हो जाते हैं इफ यू आर रेजिलियंट, और चूंकि आप बारी बारी स्ट्रगल को ओवरकम करते हो तो आपके रिलेवेंस एस्टेब्लिश होता है, और फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रिलेवेंट रहते हो तो दैट इज द ट्रिक, आपको लोग जानने लगते हैं। फेम मिलने का यही तरीका है। तो दीज आर द ट्रूथ यू नीड टू वर्क ऑन। और इन्फ्लुएंस पार्ट क्या होता है? आज से अगर आप शुरू करो तो क्या करोगे? सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि व्हाट इज, नीचे से ऊपर देखिए। पहला है कि यूनिकनेस, आप अलग कैसे हो? यू हैव बीन बोर्न यूनिक, ये तो आपने सुना होगा, एवरीबडी इज बोर्न यूनिक। क्या आपको पता यस, है कि हाउ यू आर यूनिक? तो पहले वो ढूंढना पड़ेगा कि हाउ यू आर यूनिक, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सेकेंड में आपको करना पड़ेगा कि जैसे आप यूनिक हो, आपके सामने वाला बंदा भी यूनिक है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट करते हो देन यू क्रिएट एडमायरेशन फॉर योरसेल्फ। वो बंदा, किसी भी बंदे को सबसे बढ़िया क्या चीज लगती है पता है? कि दूसरा बंदा वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करे। इससे अच्छा फीलिंग किसी को नहीं होता, कुछ भी से नहीं होता। 1000 करोड़ दे दो तब भी उसको उतना अच्छा फीलिंग नहीं होता जितना अच्छा फीलिंग उसको होता है जब कोई उसको वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करता है। तब कौन करता है ऐसा एक्सेप्ट? माँ करती है, राइट। राइट, तो यस सर, आप अगर माँ की तरह किसी को एक्सेप्ट करो कि बंदा जैसा भी है, यूनिक पैदा हुआ है, भगवान ने उसको यूनिक बनाया है, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, भगवान ने बनाए यार, अपने खुद से बन के थोड़े आ गया। तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट, उसको बेनेवोलेंस बोलते हैं। थर्ड में है कि आप रेजिलियंस जो है वो दैट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। क्या हुआ? वेयर आर यू? वीडियो कहाँ? बैटरी बैटरी इज 5%, आई चार्ज माई मोबाइल। अच्छा। और इसके बाद जो है स्टैंड आउट टू गेट 3x ग्रोथ। तो योगेश, अभी टाइम हो गया, 9 बज गए, राइट। यू आर देयर? यस, हाँ। यस, तो इस ट्रेनिंग तो हम जारी रखेंगे, नेक्स्ट संडे को मेरा ट्रेनिंग है फिर से। सो दिस ट्रेनिंग विल गो ऑन, राइट। बट दिस इज नॉट अबाउट द सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। ये तो आपने एक सवाल पूछा था उससे ये ट्रेनिंग शुरू हो गया। देयर इज ए सिस्टमेटिक ट्रेनिंग आई क्रिएट, राइट। वो बताती हूँ आपको। ये है 5 स्टडी के कोर्स, ठीक है। इसमें आप कैसे अनस्टेकेबली प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आपका सेल्फ असेसमेंट कैसे बढ़िया तगड़ा बन सकता है, आपके सुपर पावर्स कैसे आप खुद को आइडेंटिफाई करोगे, एंड देन कैसे आप जो अंदरूनी ताकत आपका है, पावर ऑफ विदिन, वो कैसे आप बढ़ा सकते हो, टीम बिल्डिंग कैसे कर सकते हो। अभी अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कब कर सकते हो? जब कर सकते हो उसको, अगर अभी आपका
वर्जन 1 करेंगे तो वर्जन 10 जैसे ही होगा, आपका बेटर वर्जन, उस चीज को, उस गोल को वो अचीव कर पाएगा। कैसे उसको फॉलो करोगे, आप चेज कैसे करोगे। एंड देन सोल सर्च, आपकी आत्मा का जो पावर है उसको कैसे ढूंढना है, ठीक है, वो कैसे यस करोगे। कंटिन्यूअस अपग्रेड कैसे करेंगे, प्रोसेस पे कैसे फोकस करोगे। देन माइंडसेट कैसे रिसेट होगा, एवरीवेयर हाउ टू फाइंड आउट। यू विल नॉट बी, हर किसी चीज में गुस्से में भरे रहते हो तो वेस्ट आपका होता है। तो हाउ टू यूटिलाइज दैट एनर्जी इनटू पॉजिटिविटी एंड ग्रो मोर, कैसे पावरफुल बन सकते हो। एंड देन हाउ यू विल ग्रो योर सेकेंड रैंक, आप आपसे जो जूनियर है उसको कैसे ग्रो कर सकते हो। दिस इज अबाउट दैट मेंटरिंग, इससे टीम बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है। देन जॉय, आपका कौन सा ऐसा स्किल है जो मोनिटाइज करने लायक है, या फिर डिजिटल स्किल आप सीखोगे। दिस इज अबाउट व्हाट द बेसिक ट्रेनिंग इज। एंड देन प्रैक्टिस करते हैं हम, 30 ऐसे बुक्स है प्रैक्टिस करते हैं जिसमें, राइट। ये बहुत सारा है, अभी टाइम नहीं है तो फिर मैं आपको सिर्फ दिखा दे रही हूँ, राइट। तो दिस विल बी ए 3 months कोर्स, जिसमें आपको सारे कुछ मिल जाएंगे और लाइफ लॉन्ग जितने भी ट्रेनिंग करूंगी उसके एक्सेस मिलेंगे, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब किए हुए हो, राइट। यस मैम। तो उसमें आपको सारे अपलोडिंग जितने भी ट्रेनिंग होंगे सारे अपलोड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे कोर्स में आ जाते हो, मेरे ट्रेनिंग में आ जाते हो, तो कुछ ट्रेनिंग आपके लिए एक्सक्लूसिव होगा, तो सिर्फ मैं एक ग्रुप में आपको सिखाऊंगी प्राइवेटली, राइट। ओके तो एंड दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू यू, दूसरे के नहीं होगा, राइट। तो ये जो कोर्स है, इस दिस इज वैल्यूड एट 59,000 और ये जो प्रैक्टिस बुक्स हैं जिसमें आप सीखोगे, एक इसमें से कुछ चूज करके या फिर सारे ही, ईच वन 30 ऑफ देम आते हैं, तो ईच वन इज लाइक $47 ईच, तो टोटल वैल्यू है 1,70,000, राइट। तो लेकिन अभी अगर आप ले लोगे इसको, so this is available to you at 5,999 only. So इधर एक लिंक है आपको, right? So if you go to that link and if you want, then this course is available and your training for lifelong training. कभी भी आप मेरे ट्रेनिंग में आ सकते हो. It is available at 5,999 only, right? ओके मैम। सो योर चॉइस। इसके बाहर अगर आप जाओगे मेरे कोर्स में, तो वहां पे हर चीज पे $197 लिखा हुआ है। सो लेकिन ये वेबिनार में ही ये डिस्काउंट अवेलेबल है, राइट। सो आप मुझे मैसेज करना, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो बोलना श्योर। कि क्या क्वेश्चन है, राइट। ओके मैम। तो टेल मी एनी क्वेश्चन, और बाद में आप क्वेश्चन आपको चाहिए तो कब तक आप ट्रेनिंग में आओगे, व्हाट डिसीजन हैव यू टेकन। After 31st August, I will in participate in your course, ma'am. Okay, so when will you like say make the payment? Sorry, ma'am. पेमेंट करके आओगे ना कोर्स में। हाँ मैम। हाँ, तो when will you make that payment? After on 31st, I got salary from अच्छा, company, and then I will pay for your course. ओके गुड। और एक और रहेगा कि अगर आप अपने दोस्त भी कोई है जिन जो स्टक है या फिर बहुत ही पोटेंशियल है उसमें लेकिन आगे जा नहीं पा रहा है, उसके Yes, भी ma'am. माइंडसेट इश्यूज हैं, उन लोगों को भी आप बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं इसी प्राइस पे। Sure, बाहर ma'am. में तो वो 1,70,000 पे आता है, राइट। Yes, तो yes, ये एक्चुअली ये ऑफर में ये लाइफ लॉन्ग आते हैं। जितने भी ट्रेनिंग करूंगी आपको, अभी आज मान लीजिए 10 ट्रेनिंग मिला है, लाइक से yes. उसमें जितने बैच जाएंगे सबका ट्रेनिंग उसमें अपलोड होगा, आपको अवेलेबल होगा, कोई भी आप देख सकते हो, कभी भी आप मेरे क्लास में आ सकते हो लाइफ लॉन्ग, राइट। Okay. हाँ, Yes.
सो इट इज लाइक दैट ओनली। तो आप ये फैसिलिटी फिर बढ़ जाएगा, राइट। मैं Yes. दूसरा बैच को मैं थोड़ा सा हायर प्राइस पे देती हूँ। सो इस प्राइस पे फिर अवेलेबल नहीं होगा। सो आप अभी इमीडिएटली जितने सारे लोग, जितने दोस्त है या फिर कोई है, थोड़े से सीनियर लोग ना ज्यादा स्टक होते हैं, आपसे थोड़ा ज्यादा भाई, मतलब 4-5 साल बड़े जो हैं वो ज्यादा स्टक होते हैं, और विचित्र कारण की बस वजह से स्टक Yes. होते हैं, जो वो किसी Yes. को बता नहीं सकते। ये मैंने देखा है। Yes. सही बात है मैम। यहाँ पे क्या होगा कि उनके बाद उनको कोई जज नहीं करेगा। हम्म। वो जैसे अटके हुए हैं, हो सकता है कि हम भी कहीं अटके हुए हों। हम उनको जज करेंगे तो वो भी तो हमको जज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे सही जजमेंट नहीं होता, सही बात। राइट। और जितने सारे मैंने आपको दिखाया नहीं, टाइम कम है करके, मैं 12 मेंटर से सीखती हूँ, इंटरनेशनल मेंटर से। सबको मैं पैसा देती हूँ ना, आपको यस। पैसा नहीं दिखाता। 12 मेंटर हैं मेरे, ओके मैम। और उनके मेंटर से भी सीखती हूँ, उनके मेंटर के भी होते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड आपने सुना है, रॉबर्ट यस। कियोसाकी? यस, वो बुक पढ़ने का शुरुआत किया था, बाद में नहीं पढ़ पाया। उसके कोच जो है, मैं उनसे सीखती हूँ, राइट। तो ग्रेट। इतने सारे लोगों का जो लर्निंग है वो आपको डाउनलोड होगा, कुछ तो डाउनलोड होगा। सही हम बात है। जितना सीखेंगे वो डाउनलोड होगा आपको। अगर आप जाके ओपनली सीखेंगे तो $2000 से कम नहीं होता उनका कोर्स, राइट। यस। तो जिस कम्युनिटी में हैं हम, वहां पे वैसे भी बहुत हमारे हिसाब से महंगाई है, मतलब कोई भी कोर्स 2 लाख से कम में तो आता नहीं। लेकिन कंबाइंड हो जाता है, जब इतने सारे 12 लोग अगर 2 लाख में मिल जाते हैं, इंडिविजुअली जाओ तो हर एक का 2 लाख पड़ता है, यस। मतलब 24 लाख आपको साल का देना पड़ता है। सारे कोई इकट्ठा आ जाते हैं तो 2 लाख में 12 लाख, 12 लोग आ जाते हैं, आपको मिल जाता है ना वो डाउनलोड, राइट। यस। तो आप ये 5-6 हजार पे मत जाओ, राइट। अगर आप श्योर मैम। कर लोगे तो उस पूरा डाउनलोड होता रहेगा। लाइक से श्योर। इट इज लाइक से हम रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं एजुकेशन को। इंडिया क्या यस। था, इंडिया क्या था पहले? गुरुकुल होता था इंडिया। इंडिया लीडर था लर्निंग का। यहाँ यस। पे जितनी लर्निंग थी वो दुनिया भर में कहीं नहीं था। वो तो अंग्रेज नहीं। लोग आके हमारे ये लर्निंग सिस्टम को बर्बाद कर दिए, राइट। नहीं तो हम लीडर हुआ करते थे। हम फिर से उसी स्टेज को जा रहे हैं। हाँ, मेरे गुरु गुरु भी सीखते हैं उनके गुरु से, गुरु के गुरु, एंड देन ऑल इंडियंस विल बी द लीडर्स ऑफ इंटायर वर्ल्ड एक दिन जाके। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं ना, हमारी नॉर्मली ही स्पिरिचुअल ग्रोइंग थोड़ा सा हो जाता है, राइट। तो ऑटोमेटिकली हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो सीखने के लिए यहाँ गोरे लोग आते हैं, राइट। वो सीखना यस। तो हमारे घरों में होता है, हर एक, हम्म। राइट। ये देखा है आपने कभी? यस मैम। तो उसी उसी कम्युनिटी में मैं हूँ, तो फायदा उठाना इसका बोल रही, राइट। सो 31st को फिर मिलते हैं फिर तो। श्योर मैम। थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, बाय।